Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, students, our chapter issue of debentures was going on. And have you solved questions till question number 5? I hope most of the students have solved. I know duffers are not solving. It's okay. If they are not doing, no problem. It's their problem. Our purpose is only to do our job, and who are willing to study, they are studying, they are doing everything properly, and we cannot do anything for duffers. Okay, so let's come to the point today in this video. Better, we are going to study about question number 6, 8 and 9. So open your DQQL book, chapter issue of debentures, you know very well, you have seen on the screen, and question number 6. See, question is Navlakshmi Limited invited application of 3000 12% debentures of 100 each at a premium of rupees 50 per debenture, at a premium of rupees 50 per debenture. And one more interesting thing is given in this question, that whole money was payable on application, but here applications were received for 4000 debentures. क्या समझ में आया? कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, डिबेंचर्स वर इशूड दैट वर 3000 एंड पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 4000. ओके, पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? 4000 के लिए. एंड 1000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, 1000 रिजेक्ट हो गए, एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड. ओके, डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. जो डिबेंचर्स थे वो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिए गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो this is important question which of 2012 asked by CBSE. 4000 application was came, okay, into 10 including 5 rupees premium 15. So 4000 multiplied by 15, it will be 6 lakh. To prepare a format and write down the first entry. On the top you have to write in the books of Navlakshmi Limited, date particular, ledger folio, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ओके, नाउ 4000 से आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे 15 रुपये के हिसाब से. सॉरी 150 नॉट 15. इट इज़, यहाँ से देखिए आप लोग, 100 रुपीज़ रेट है, 50 रुपये प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50, 150 हो जाएगा. तो एप्लीकेशन रेसिप्ट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. नाउ व्हाई हियर दिस इज कमिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट? बेटा, because the whole money was payable by the debenture holder at the time of application, that is why. Okay, so second, transfer to debenture allotment account, 12% debenture account debit to 12% debenture account to security premium and to bank account. Why bank beta? Because 1000 share were refunded. Okay, so 100 रेट था, 3000 इंटू 3, ये 3 लाख आ गया, एंड 3000 इंटू 50, 150 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, एंड 1000 इंटू 150, 150 विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट. बेटा, इज इट क्लियर टिल हेयर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्वेश्चन 7 भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. वैसे
देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7। रीड डाउन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आर लिमिटेड इशूड 8000 डिवेंचर बेटा, 13% डिवेंचर्स थे, 100 इसका 5% डिस्काउंट पे थे, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड डिस्काउंट विल बी इंक्लूडेड ऑन अलॉटमेंट, तो 25, ओके, 25, 50 and 50, 100, okay, and they were issued at 5% discount, so it will be 20 minus 5, so sorry 25 minus 5, so normal price debenture का हो जाएगा 20, okay, and we have to write off the loss, so we will pass entry, okay, so I think you can solve this question। किससे एज इट बनेगा आपका डिबेंचर, आपका जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, ठीक है, ठीक है, तो उसी में आप ड्यू डेबिट कर लोगे, रिमेनिंग मनी जितना ड्यू हो जाएगा आप उतने से रिसीव कर लेंगे, ओके। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 8। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शारदा लिमिटेड व्हेन कंपनी इशूड 5000 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 6% डिस्काउंट बेटा, 6% डिस्काउंट पे था, 100 का था। अभी इसमें ये लिखा नहीं एप्लीकेशन का रेट क्या है, अलॉटमेंट का क्या रेट है, तो आप सारा मनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही रिसीव कर लेंगे, ठीक है। एंड वेन एवर वी विल रिसीव मनी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एडवांस, then what will happen, bank account debit to debenture application and allotment account, okay। 470 है, 5000 इंटू 6 का डिस्काउंट मार दीजिए, 94 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ईच पे, तो 470 आ जाएगा, ओके। जब भी डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ड्यू की एंट्री में डेबिट हो जाएगा, 5000 इंटू 6 30,000 एंड टोटल ड्यू वॉज 5 लाख, माइनस कर देंगे, so we will receive 4,70,000। is it clear till here? Any problem anybody have? Note down for this question, okay, noted। now see question number 9। next topic is consideration other than cash, means whenever beta company purchase some assets and for that assets company issued what, debentures। so company purchased assets of value 10,40,000 from Y that company, it has agreed that paid 14% debentures of 100 each, ठीक है। पार पे भी इशू करने हैं, डिस्काउंट पे भी इशू करने हैं, प्रीमियम पे भी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना होगा, हमें एसेट्स खरीदे हैं तो जर्नल एंट्री पास करनी होगी, सो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। नोट डाउन दिस एंट्री, जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए एंड नोट डाउन दिस एंट्री। After that, what will happen, when debentures were issued at par beta, तो final money will be paid to vendors at once, तो vendors account debit to debenture account 10,45,000, how much, 10,45,000, okay। and whenever debentures are issued at a discount, then what will happen, vendors account debit, discount on issue of debenture account debit to 14% डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। अब जब डिस्काउंट पे गए हैं बेटा, 100 का डिबेंचर्स था तो 5 रुपीज़ कम हो गया, 95 पे हो गया ना, तो दैट इज़ वाई अगर आप कोई भी चीज़ सस्ते में बेच रहे हो तो आपको ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करने होंगे ना, दैट इज़ अर्लियर ओनली 10,45,000 डिबेंचर्स वर रिक्वायर्ड व्हेन द रेट ऑफ डिबेंचर वाज 100 इच, नाउ इट इज़ 95, दैट इज़ वाई वी आर इशूइंग 11 लाख डिबेंचर्स, बट मनी पेड टू वेंडर इज सेम एंड रिमेनिंग एक्स्ट्रा वॉट एवर दैट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप महंगी इशू करोगे तो आपको कम इशू करनी होगी, ठीक है। सो इन दैट केस व्हेन डिबेंचर्स अकाउंट इशूड प्रीमियम, तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इज इट क्लियर?
नोट डाउन।